Okay. Hi guys, my name is Akash Sharma, and with me are Mr. Anish Bachchan and Mr. Garvit Bansal. So Anish Bachchan is final year of law student, and Garvit Bansal is second year of law student, Third year. third year. So today it was the conception of Garvit to talk about philosophy and the meaning of life. Right. What is the purpose of life? What is the point? And we are going to introduce one famous philosopher. So, Garvit, do you want to start? Yes. So first of all, आकाश भाई, एक तो आप पहले जो भी जितने भी आपके पहले से आपने दिमाग में ख्याल भर रखे हैं वो सब खाली करने हैं। उसके बाद ही मैं एक बेटर पोजीशन में होऊंगा आपको एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है। अब भाई आप पूछो कि व्हाट इज लाइफ या फिर क्या पर्पस है क्या नहीं है, तो बहुत सारे सवाल आते हैं। तो हाँ, आते हैं। लाइक आपने ऑब्जर्व किया होगा कि like bad people often tend to get away with their actions and good people are faced with terrible hardships. uh, why is this? Like the meaning that we attribute to life may be just an illusion, क्योंकि भाई कोई कोई गॉडली प्लान है इसके पीछे या कोई आफ्टर लाइफ है। कोई डिवाइन जस्टिस, अगर डिवाइन जस्टिस ऐसा कुछ होता तो इतने सारे बच्चे मरते नहीं, इतने फ्लड्स नहीं होते, है ना? राइट। वो ये if there is any plan that transcends this life but simply we don't know it. हमारे समझ के बाहर होगा ना, है ना नीश भाई? सही बोले बॉस। It is outside our conditioning, like we can only understand the human terms. अब तो फिर it brings me to the same question, that is life is meaningless, what's the point behind all of this? मतलब भाई हर रोज अब बंदा सुबह उठता है, मील 8 hours of office, मील स्लीप, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सेम रिदम चल रहा है। तो एवरीथिंग हैपेंस रैंडमली। हम सबको पता है हमारा बर्थ होना है, फिर डेथ होनी है। तो व्हाट्स द पॉइंट? इज देयर एनी डिवाइन प्लान और व्हाट? सो Albert Camus, very famous philosopher. Do you want to say? No, you go on. So that's what he asked, that if life is like a boulder that we keep on moving on top of the mountain and it keeps on falling down and the cycle repeats again and again, so is the only option to commit suicide? A philosophical society, as he said. Yeah. So this is going to be the theme of our topic today, that is life worth living or should we just commit suicide? Committing suicide is not a solution to the problem. What is the solution? Solution is the getting deeper into that dive. What is life? जब मैं कह रहा था ना कि वो सेम रिदम के साथ चलती रहती है साइकिल, तो वो कैसे बिहेव करे? एक दिन वो वाई का क्वेश्चन जब अराइज होता है कि वाई, तब से आप थोड़ा और डाइव करते हो कि किस लिए है ये सब, क्या है क्या नहीं है। अनीश भाई, आपके हिसाब से लाइफ का मीनिंग क्या होता है? ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है बॉस, बट इवन दो ये सिंपल लगता है, बट आई थिंक इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। अगर देखा जाए तो आपने ग्रेट भैया ने जो भी बोला है बेसिकली सही है। आई मीन वी आर जस्ट डूइंग द रिंस एंड रिपीट प्रोसेस और उसका कोई एंड रिजल्ट नहीं निकल रहा है। There is no proof that universe has any meaning. Like, do you know any proof? Do you have any proof that we are real? हम किसी के सपने का पार्ट नहीं है। It can be. Our dreams are more like some consciousness that exists in our minds. अब ये तो थोड़ी ना कह सकते कि ड्रीम्स कभी रियल होती है कि रियल होती है। In most cases it just gets broken. 10,000 साल से फिलोसोफर्स यही क्वेश्चन कर रहे थे कि क्या चीज रियल है क्या नहीं है। फिर रेने दिकार्ते आया, उसने बोला कि क्या हम रियल है या नहीं। वो तो कोई एक
फिलोसफिकल सॉल्यूशन किसी ने भी नहीं दिया आज तक, ना कोई दे सकता. Philosophy is not about answering solutions. It's just about giving you some comfort. Questions. Uh, Right. every question leads to another question. Right. There can be no answer. It's like भगवान the खुद के आ egg जाए and chicken concept. Yep. पर वो ये भाई कि इफ अगर हमें पता है कि कोई आफ्टर लाइफ नहीं है या कोई गॉडली प्लान नहीं है, तो एक ये भी है कि हम इस लाइफ पे फोकस कर सकते हैं. जस्ट लाइक वी कैन हैव अ हॉट कप ऑफ कॉफी, वी कैन बी कंटेंटेड. And to put it in a nutshell, I believe that one should live without appeal. Like, as in, it is not necessary that every time our actions will lead to something better in future. We have to accommodate ourselves with what we have, what we know. I think to add more on this comment, I should say that there are times where we will be facing shitty moments in our lives, and there's nothing we can do about it. The only thing, sometimes we can only think that the best course of action that we can take is to accept the things that that are happening right now and just move on with it. But why should we not commit suicide? I mean, you have someone to worth living for, right? For me, it's my family. For you, it's yours. I mean, you still have to provide for your family. I have to provide for my family. I'm pretty sure you also have to provide for your family as well. And what about the family? उनका भी तो साइकिल, सारे इंडिविजुअल्स का साइकिल तो सेम ही होता है ना. You said, Akash, ki why don't we commit suicide? But Albert said that we should revolt against this concept of absurd. We should not just simply surrender ourselves that there is no meaning in life, so we should commit suicide. Like, this is not the way. We just enjoy this moment, and like, see, nothing is certain, but at least that is a certainty. Right. You're getting right. Right, I'm getting you. We should live each moment as it's our last, and it's a very big concept, but still. I think, in my opinion, suicide is just one alternative, where we can also find other alternatives to break this rinse and repeat circle, which which will eventually become our Achilles heel. या तो we can break the monotony in life, do new experiences that bring us joy and happiness. बट एक टाइम के बाद यार ऐसा ही लगता है कि सब कुछ, किसी भी चीज में आपको खुशी नहीं मिल रही होती. और तो मेरा क्वेश्चन तो यही है, फिर जब ऐसा लगता है तो सुसाइड क्यों नहीं करनी चाहिए? अब हर चीज तो बॉस ओवर सैचुरेट हो ही जाता है इवेंचुअली, तो इट्स द बेस्ट. टॉकिंग एट एक्सट्रीम्स कि भाई सीधा सुसाइड कर लो, ऐसे थोड़ी है. आई डोंट थिंक सुसाइड, देयर इज अ मिड वे, ना कुछ तो होगा ही. क्या है, क्या सॉल्यूशन है फिर? उसी में तो सारी लाइफ निकल जाती है कि क्या है वो चीज, किस. बट एटलीस्ट सुसाइड इज नॉट अ. But if life is truly absurd, there is no meaning to life, no purpose, there is no afterlife, no divine justice. We have to accommodate. Accommodate how? भाई just going with the flow. अब कसाब आ गया हमारी कंट्री में, इतने सारे लोगों का मर्डर कर दिया. Will you call it divine justice? There is no justice. Right. So we should go with the Kasab's flow.
अब भाई आप तो कंफ्यूज कर रहे हो एकदम। अब आपकी जितनी फिलोसफी है। मैं तो जो थोड़ा बहुत पढ़ा था अपना बस उतना ही शेयर कर पाया एक्सपीरियंस जो मैंने समझा, और उसको मैंने थोड़ा प्रिसाइज में पुट करने की कोशिश की। एक बहुत अच्छा फिलोसोफर था विक्टर फ्रैंकल। वो नाजी कंसंट्रेशन कैंप में रहा था, उसके साथ बहुत टॉर्चर हुआ था, एंड ही रोट दिस बुक द मीनिंग ऑफ लाइफ। एंड उसने बताया कि ही सर्वाइव्ड विदाउट टूथब्रश, विदाउट फूड, विदाउट एनी फिजिकल नीड्स, सोशल नीड्स, एंड ही वाज only able to survive because he knew that there was some higher purpose in his life, not that God made, something that he made for himself. So what if purpose in life is something that you create for yourself to make the world a better place? तो कामूस ने ये बोला है कि instead of committing suicide and getting rid of this world, why do not you make this world a better place for yourself and others? एंड अगर हर बंदा ये करने लग जाएगा तो सबका ही भला होगा. देन पीपल वुड नॉट नीड टू सी लाइफ एज absurd. Not everyone will have this larger than life concept. Everyone will just be cynical or be selfish about themselves. They don't care about what other people would think. I mean, बहुत लोगों के पास pride, कुछ ज्यादा ही pride and ego रहेगा. I mean, they would be too egotistical to think about what someone else is going through right now. तो लोग चैरिटी क्यों करते हैं? टू फील गुड अबाउट देमसेल्व्स. Most cases, yeah. We are born to be selfish. Otherwise, we could not reproduce our genes. Those who are selfless and they would cease to exist in the gene pool. और Because लोग ऑस्कर शेंडलर की तरफ नहीं ना ले सकता है बॉस. There was a Japanese philosopher, he said, he used to say, I bid farewell to what goes and welcome to what comes. Like, he didn't argue with anyone ki why are you going with from my life, or ki why are you coming into my life, or so it's like going with the flow. Like, whatever happens, just let it go. You don't have to hold on to anything. ओके, सो नीचा ने ये बोला था कि इसको ऑपोजिट करो, दैट इंस्टेड ऑफ गोइंग विद द फ्लो, इफ समथिंग अगेंस्ट यू हैपेंस, यू टेक इट. कोई आपकी प्रॉपर्टी छीन रहा है, कोई आपकी गर्लफ्रेंड छीन रहा है, तो आप लड़ो कि ऐसा क्यों हो रहा है. एंड चाहे आप सक्सेसफुल भी ना हो, बट यू टेक इट as much as you can. So there are various aspects. I mean, ये हिस्ट्री में भी बहुत proofs दिखाया गया है. I mean, for example, during the Warsaw, during World War II, when the Nazis took over Poland, and during or back in 1944 or 45, the people of Warsaw rose up against the Nazi occupiers, and yet they still failed to took back their home from the Nazis. So एक तरफ से कह सकते हैं that even though they knew it was a lost cause, they still fought for their homes. Right, exactly. तो अगर वो they went with the flow, then what would have happened? Same thing would have happened, just that their pride would have also been lost. But in some cases, Garvit is also right. If somebody dies, you cannot fight it. Then you have to accept the reality. But अगर sometimes I wonder, like किसी डेथ हो गई उसके बाद where is he, मतलब वो बंदा किधर है और कहाँ गायब हो गया, और भाई, my theory is that death has no meaning, and we try to ascribe meaning to death in various ways. That he died as a martyr,
or he's in a better place. When you look up at the stars, each star is the representation of the person, because Okay. we want closure. We are very uncomfortable with the idea that there is no meaning to something, so we create our own meaning. मूवी में जब जाते हैं, मूवी कब अच्छी होती है? जब मूवी की एंडिंग का कंक्लूजन कुछ हो. अगर बिना कंक्लूजन के खत्म हो गई तो वो मूवी बेकार जाती है, बिकॉज हमारा ब्रेन, वो फिर अच्छा नहीं लगता ब्रेन को कि वो चीज खत्म नहीं हुई पूरी तरीके से. बॉस ये तो बहुत ही कंप्लीट डिफरेंट मैटर हो गया, क्योंकि मूवीज में ज्यादातर तो क्लिप हैंगर्स ही होती हैं, तो हमारा और क्या बोलते हैं डिजायर और बढ़ जाता है कि उसकी एंडिंग कैसे मिले. तो उसकी हम थियरीज बनाते हैं. यूट्यूब पे जाके हम थियरीज देखते हैं कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि हमारा ब्रेन ऐसे नहीं रह सकता कि खत्म हो बिल्कुल. गई तो क्या हुआ. तो आकाश भाई, मतलब अगर फिर भी आपने तो इतने कुछ पढ़ लिया, आप तो मास्टर हो चुके हो फिलोसफी की. गुरु क्यों बनाया है? मैंने क्या पढ़ा? अगर अनीश आप अनीश भाई, प्रिसाइज ये पूछ. आपसे, तो आप एक सेकंड, सॉरी गर्वित, भूल ना जाऊं. हिटलर को आर्ट स्कूल में जाना था, एंड ही गॉट रिजेक्टेड in the art school because he was not a Jew. So I don't know if it's an anecdote or if it's true. Then he said that he will take revenge against all the Jews. So what if he was accepted into the art school? How would the fate of humanity would have changed? एक It छोटी सी. wouldn't make any difference because World War One would still happen. He would have still been enlisted. वो जर्मनी तभी हार जाती. He would have been got out of the army and he would have become a dictator anyway. If कोई डिफरेंस नहीं होता चाहे वो आर्ट स्कूल में जाए या ना जाए. Akash, what are your thoughts on destiny, fate? Destiny, Is it real? bro. Or If there is no free will, then it's a very sad thought. That then seriously, then that, in one way, if there is no God, we can still create our meaning. But if everything is written for us, there is no point in creating any meaning. yes, we will surrender that what will happen will have to happen. I don't have to do anything. My Exactly. destiny will take care of me. And what इससे is written, मतलब क्या है फिर, अगर डेस्टिनी है किसी की लिखी हुई? फ्री विल is a very complicated topic, and we have to believe that there is some intrinsic will that forces us to do things. But अनीश भाई, आप ये देखो कि जैसे कुछ सीरियल किलर्स होते हैं, now they have mental disorders or parts of their brains are corrupt, है ना गर्वित? कि मतलब they cannot distinguish right from wrong. तो उन्होंने खून कर दिया आवाजें सुन के. तो how much are they responsible for their actions? Are they responsible for their actions? अब उनकी कंडीशनिंग ही इसी तरीके से हुई है. और मोर ओवर बंदे की सर्कमस्टेंसेस देखते हैं हम किसी को जज करने से पहले. फॉर एग्जांपल, अगर किसी की मेंटल फैकल्टीज में प्रॉब्लम है, तो उसको तो उसके क्राइम को तो ऑफेंस भी नहीं माना जाता. अच्छा, लेकिन कोई मेंटली बहुत फिट है, लेकिन बचपन में उसके माँ बाप उसको बहुत अब्यूज करते थे, उसको मारा करते थे, बोलते थे कि तेरे से कुछ नहीं होएगा, तू ये बनेगा वो बनेगा. मेंटली तो ही इज ऑल राइट, बट एनवायरनमेंट उसका ऐसा था, कंडीशनिंग ऐसी थी कि वो हर चीज में वायलेंट होता है. तो तो वही बात है ना, आप जो रिच डैड पुअर डैड है, उसमें वो कहता नहीं, जो सबकॉन्शियस में बैठ जाती है बातें कि जो रिच डैड के बच्चे होते हैं, अगर वो रियल एक्ट करे, दे आर टोटली स्टूपिड. बट वो प्रोग्रामिंग बचपन से इस तरह हो गई है कि उनके सबकॉन्शियस में ये बात है कि हाँ, दे कैन डू एनीथिंग, दे कैन सक्सीड इन लाइफ, तो दे डू वेल. और ऑन दी अदर हैंड, पुअर डैड्स के जो बच्चे हैं, उनकी
उनकी प्रोग्रामिंग कुछ इस तरीके से हुई है कि हम तो कुछ नहीं कर सकते लाइफ में, हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये सब बातें रहती है, और ये आपकी बिल्कुल। उस आपको शेप करती है आपकी लाइफ। एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा हुआ था कि ये जैसे सर्वेंट्स और मेड्स होते हैं, अब नाउ दे लिव इन अ पुअर बैकग्राउंड, ठीक है, ऑल देयर लाइफ, बट काम करने आते हैं इन आवर हाउसेस, सो दे सी हाउ द रिच पीपल लिव इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी, ठीक है, बट उनके बच्चे दे गो इन अ पुअर स्कूल, तो फिर उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन बिल्ड हो जाती है, एंड तो दैट्स भाई व्हाई क्राइम। हु इज टू बी ब्लेम्ड, द गवर्नमेंट, पेरेंट्स, और हु, लाइक द पर्सन हिमसेल्फ? किसी के दिमाग के अंदर झांक के तो देख नहीं सकते कि मतलब हाउ मच परसेंट उसने गलती करी है। आई थिंक द बिगेस्ट रीजन जिस पे साबित ने क्राइम किया होगा बिकॉज वो वही रिच एंड पुअर का जो गैप बढ़ जाता है ना, उसी वजह से हेट्रेड पैदा होने लगती है। तो अनिल भाई ये किसकी गलती है, मतलब अगर वो बहुत पुअर है कि उसको खाने के पैसे नहीं मिल रहे हैं और मजबूरी में है, दवाई चाहिए घर वालों के लिए, तो क्या करना चाहिए उसको अब वो blame- मोरालिटी की बातें आ गई कि व्हाट इज मॉरली राइट और रॉन्ग। मतलब देखा जाए तो वो बंदे अभी गलत नहीं है जो थेफ्ट कर रहा है, क्योंकि उसकी घर में कोई बीमार है और उसके पास मीन्स नहीं है, वो तो लाइफ सेव करने के लिए कर रहा है। हम्म। तो अब बट सही गलत, हु इज राइट हु इज रॉन्ग, ये तो क्या ही बोले। और ये पर सोसाइटी को फंक्शन करने के लिए ये सारी चीजें तो डिटरमाइन करनी पड़ेगी ना, वरना तो ये बोल दे कि मेरे साथ ये हुआ है इसलिए आई एम राइट, मैं सबकी चीजें चुरा लूंगा, तो ऐसा भी नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल। Philosophy is very complicated. There are so many factors at play. कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भाई आगे से ये पढ़नी ही नहीं है, फिलोसफी इतना दिमाग खराब कर देती है। फिलोसफी लाइफ का पार्ट है बहुत बड़ा। बट वही, इसको इग्नोर नहीं कर सकते, अल्टीमेटली बंदे को इसी पे आना पड़ता है कभी ना कभी। जो जब वो अच्छा, मैं वाई का अराइज हो जाता है ना अंदर, तो हाँ, मैं उसके क्वेश्चन बाद पूछता हूँ एक, अनीश भाई, नहीं। गर्वित, आपसे दोनों से। एक ट्रेन जा रही है, ठीक है, अब ट्रेन में ट्रैक में 5 लोग हैं, ठीक है, उनको पता नहीं कि ट्रेन आ रही है, तो वो मरने वाले हैं क्योंकि ब्रेक फेल है ट्रेन का। अब ट्रेन का ड्राइवर क्या कर सकता है कि वो लेवर प्रेस कर सकता है और ट्रेन का ट्रैक चेंज होके 2 लोग होंगे जिनको नहीं पता कि वो मर जाएंगे, उन पे जा सकता है और उनको मार सकता है। तो 5 के बजाय उनको 2 लोगों को मारना चाहिए या नहीं? भाई अब वो जैसे आपने भी तो लॉ कर रखी है, नेसेसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा गलती से। है कि अ, भाई लॉ लीगली नहीं पूछ रहा, मैं मॉरली पूछ रहा हूँ। लीगल होता है जो पार्लियामेंट हमारे लिए रूल्स बनाती है, मॉरल्स होते हैं जो क्या सही है क्या गलत है हमारे अंदर से। तो दैट इज द मेन डिफरेंस। तो मॉरली व्हाट डू यू थिंक द आंसर शुड बी? अब भाई वो ये टू प्रिवेंट द ग्रेटर हार्म दे हैव टू रन ओवर दैट टू पीपल। बट व्हाट गिव्स यू द राइट टू डिसाइड हु शुड लिव एंड हु शुड डाई, अनीश भाई? Either way, that railway driver is fucked because वो वैसे ही मारने No, no, वाला है. forget. He's fucked anyway. Okay, but morally, what should he do? अच्छा, मैं दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ। 5 लोग हैं, ठीक है, उनको पता नहीं मरने वाले, ब्रेक फेल है, ऊपर से बंदा देख रहा है कि ये हो रहा है, एक बहुत मोटा सा आदमी है, ठीक है, अब उसने उसको धक्का दे दिया, उसको पता है वो धक्का देगा तो पटरी के सामने आ जाएगा और बाकी 5 मर जाएंगे, लेकिन वो मोटा आदमी भी मर जाएगा, तो उसको धक्का देना चाहिए ऊपर से? नहीं भाई, ऑब्वियसली नहीं। तो भाई अब 2 को मारना सही था, लेकिन अब 1 को मारना सही नहीं है 5 को बचाने के लिए, अब डिफरेंस क्यों आ गया? आर्ग्यूमेंट तो वही था ना कि मतलब लाइफ ज्यादा सेव करनी चाहिए, बिकॉज नाउ वी समहाउ फील रिस्पॉन्सिबल कि वी आर इन कंट्रोल ऑफ दैट लाइफ, वो मोटे आदमी की लाइफ में। एग्जैक्टली।
अभी इस वक्त तो हम उस बंदे को मतलब वो तो हमारे हाथ में रिमोट की उसको धक्का दे या ना दे, पर जो ट्रैक्स पे है उस पे किसी का भी कंट्रोल नहीं है, उन लाइफ्स को तो जाना ही है हम्म फॉर्चुनेटली। तो क्या अब ही एक मुझे ये नहीं टेररिस्ट समझ में आ रहा है कि वो 5 बंदे ट्रैक पे आ ही क्यों है। ये है ना असली बात है। हाइपोथेटिकल सिचुएशन। या ट्रू ट्रू। अब एक टेररिस्ट है भाई, ठीक है, वो करोड़ों की जान लेगा। अब उसके आसपास 15 लोग हैं जो बेचारे हैं, ठीक है, मासूम से। अब प्रेसिडेंट के पास पावर है कि व्हाट डू वो यू मीन बेचारे? हु बेचारे इज? इनोसेंट। नो प्लीज भाई आप इलेबोरेट। फिलोसफी मत घुसा भाई, एक करने दे वरना माइंड फक हो जाता है। तो भाई लाइक प्रेसिडेंट, आकाश, हाँ, हम में कौन बेचारा है ये बता। है। हम तीनों में हाउ विल यू जज हु इज मोर इनोसेंट? एवरीवन थिंक्स ऑफ देमसेल्फ एज द विक्टिम। मैं तो बस इतना बोल सकता हूँ। क्योंकि क्योंकि हमने अपनी लाइफ क्लोजली देखी है कि हमारे साथ क्या अत्याचार हुए हैं, क्या गलत हुआ है, हमारे क्या मेंटल डिसऑर्डर है, क्या लोगों ने हमें कैसे हर्ट करा है। दूसरा का हम नहीं देख सकते। सो वी आर द हीरो ऑफ आवर ओन स्टोरी। इवन इफ वी आर नॉट बिल गेट्स, वी थिंक कि बिल गेट्स बहुत लकी हो गया, हमारे सर्कमस्टेंसेस इतने गलत थे, हमारे माँ बाप ने हमारे साथ इतना गलत करा। We only see the outer world of Bill Gates. We don't see the inner turmoil what not Bill Gates or in fact anyone is going through. We only get uh, We just fascinated by. make the assumptions of what he is going through. अब मान लो मैं ग्रहित भाई के बारे में बोल दिया कि आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है। मैं बस अज्यूम कर रहा हूँ, मैं थोड़ी ना बोल सकता हूँ कि व्हाट ही इज रियली गोइंग थ्रू राइट नाउ। अरे गर्वित भाई की जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है। अरे भाई जिंक्स ना हो। सही है, तब तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो कॉल में मैं तो लीव कर रहा हूँ भाई कुछ। एनीवेज तो गर्वित क्या क्या सोचा भाई काश के अब बारे इतना पजल कर दिया ना, अब सोचने की ताकत खत्म। में? अब तो भाई ये तो दिन में तो ऐसे 1000 थॉट्स आते हैं, ये पजल क्या, ये तो सोचना पड़ता है यार। अब आगे जाके बिजनेस करेगा, जज बनेगा, कुछ भी करेगा, ये सब तो आएगा ही। बाकी सीक्रेट्स नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए बचा देते है, इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? अच्छा एक हैं। बात बता, एक हम्म। बैगर आए तुझसे खाना मांगने, ठीक है, लेकिन तेरे को पता है कि ये बैगर तुझसे खाना मांगेगा तो आगे जाके कभी मेहनत नहीं करेगा। नाउ ही विल रिलाई ऑन अदर पीपल फॉर फूड, तो शुड यू गिव हिम द फूड? मतलब आपके लिए वो रिलेक्टेंट हो जाएगा अगर मैं उसको खाना दूंगा, और ही डिपेंडेंट हो। वोंट ही वोंट स्ट्राइव हार्ड हम्म। टू। भाई बट अगर उसकी इमीडिएट नीड ही इतनी है कि तो उसके इमीडिएट नीड्स सॉल्व करते रहेंगे तो वो खुद कब करेगा? ये आई मीन भी नहीं है। It's really doubtful कि you will see the same beggar every day. इट्स अ हाइपोथेटिकल ब्रो। बच्चन भाई तो भाई भाई तो प्रैक्टिकल में आ जाते हैं। सीरियस ले लेते हर बात को। But still, अगर अगर वो immediately need करता है, फिर बार बार एक ही चीज बार बार मांगते रहता है, and you can't help him every day. You हम्म। can't expect that same person to give him food every day. वो भी, I mean, the person giving food would be also in trouble financially. भाई लोग काम करना छोड़ते ही कि अगर मतलब इतना आसान है खाना लेना तो ही व्हाई अगर व्हाई शुड यू वर्क अब इफ यू खाना कैन तो गेट पेट फूड? से नहीं निकलता है बॉस, you have to work your ass for it. अब वो अब वो बेगर अगर consistently भीख मांग रहा है खाने के लिए, then he is the one who brought this on himself.
and I think he should at least take some accountability to work his ass off. हर दिन थोड़ी ना भीख मांग के तुम खाना ले सकते हो. What do you think about death penalty? Death penalty. Yes. To create deterrence effect in the society. अच्छा तो पूरी सोसाइटी में तो डेटरेंस हो गया, लेकिन एक बंदे की जान चली गई. नहीं भाई, उसने भी तो फिर हीनियस क्राइम किया है ना. कसाब का केस देख लो बॉस. डेथ पेनल्टी कोई ऐसे वैसे ऑफेंस में तो मिल नहीं जाती. किस ऑफेंस में मिलनी चाहिए? पर भाई हमारे लॉज काफी रिफॉर्मेटिव है, मतलब हर बारी डेथ पेनल्टी थोड़ी, बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर में. पर मैं आपका क्वेश्चन समझ गया कि सिर्फ ये डेथ पेनल्टी का पॉपुलैरिटी ना बेसिकली हमारे टीवी सीरियल्स और मूवीज में लाया गया है कि जो भी बंदे ने क्राइम किया है, जैसे कि मर्डर कर दिया या फिर किसी का कोई भी हीनस क्राइम कर दिया, तो उसके तुरंत फांसी की सजा दी जाती है. तो आकर्ष भाई, इसलिए अब समझ जाओ, कोई हीनियस क्राइम करोगे तो डेथ पेनल्टी मिल सकती है. हर क्राइम के लिए थोड़ी ना हो सकता है बॉस. जो सीरियस क्राइम उसने किया है. अच्छा, this is a very unpopular opinion and this is just a question that I am asking. किसी रेपिस्ट को अगर पता है उसको डेथ पेनल्टी मिलेगी, तो he has all the incentive to kill the victim, क्योंकि मर्डर में भी डेथ पेनल्टी मिलेगी, रेप में भी डेथ पेनल्टी मिलेगी. तो isn't it better to not leave a witness? तो उसकी थिंकिंग ये नहीं होगी कि मैं इसकी जान ही ले लेता हूं, क्योंकि पनिशमेंट मेरे को वही मिलेगी, बट एक विटनेस कम हो जाएगा, सो मे बी आई कैन गेट अवे. It wouldn't make a difference. अगर वो मर्डर कर भी देता है रेप विक्टिम का, then he would still be मर जाएगा बंदा. मर भी जाएगा ना, तब भी there would still be other actors who would be seeing the incident. मान लो उसी रेप विक्टिम को मर्डर कर रहा है, फिर और सीसीटीवी कैमरा ने उसको देख लिया. There would still be someone who could be seeing the crime. Unless अगर तुम कोई आइसोलेटेड जगह में कर रहे हो तो then it's a different matter. यार अगर रेपिस्ट को पता है कि उसको डेथ पेनल्टी नहीं मिलेगी, उसको 10 साल की सजा मिलेगी रेप करने में, तो वो और मर्डर करेगा तो उसको फांसी मिल जाएगी, तो वो सोचेगा ना खून करने से पहले रेप विक्टिम का. लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर उसको फांसी ही मिलेगी, तो वो सोचेगा क्यों खून करने से पहले? मतलब लॉजिकली मैं पूछ रहा हूँ. व्हाट्स योर टेक आकर्ष भाई? I think that every punishment should not be based on emotion, it should be based on logic, so that more crime could be deterred. करेक्ट. बॉस इंडिया में यहाँ पे इमोशंस ही सेट होते हैं ज्यादातर. नाइस वन, नाइस वन. या तो भाई लॉजिक भी नहीं चलता, सिर्फ मैजिक चलता है. I mean, look at the whole T series PewDiePie thing. देशभक्ति के नाम पे तो T series जैसे कंपनीज को सपोर्ट किया है, तो भाई ऑब्वियसली लॉज इमोशनली इंसाइटफुल हो जाएंगी. तो अनीश भाई, कोई सुसाइड अटेम्प्ट करता है और उसको जेल मिल जाती है, तो क्या करना चाहिए? फांसी दे दे? आई थिंक फांसी कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा वो भी सुसाइड अटेम्प्ट के लिए, क्योंकि वो कर रहा हूँ भाई, मैं पूछ रहा हूँ. आई डोंट थिंक आईपीसी में इसको अलाउ किया हुआ है कि अगर तुम सुसाइड करने का कोशिश करोगे सीधे तुमको फांसी की सजा नहीं, जेल मिलती है. जेल ही तो मिलती है. अब क्यों मिलती है भाई? भाई वो उनका ये मानना है ना कि जब बर्थ आपके कंट्रोल में नहीं है, आपने खुद से मतलब आप कहीं पे भी बॉर्न हो गए, खुद के विल से तो नहीं हुए ना कि मैं कहाँ बॉर्न हुआ, तो डेथ भी आप खुद का नहीं कर सकते, अपनी लाइफ खुद नहीं ले सकते.
नहीं, मैं ये सुसाइड तो गंदी चीज है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि रिफॉर्म सेंटर में क्यों नहीं डाल देते, या साइकियाट्रिक सेंटर में क्यों नहीं डाल देते? जेल में बंदा हमारा साइकियाट्री और रिफॉर्म सेंटर उतना भी डेवलप नहीं है ना जितना वेस्ट में है बॉस। भाई जेल से भाई तो ज्यादा है। तो आप लॉ स्टूडेंट हो, PIL फाइल करो। अनीश करेगा ना, मेरे को लॉ में इंटरेस्ट नहीं है। भाई क्या हो रहा है ये, लॉ के स्टूडेंट्स होके फिर भाई अंडे देंगे? स्टूडेंट हो। क्लर्की का कोर्स कर रहे हैं, फाइल तो करेगी, फिर फाइल करो भाई कि क्या हो रहा है ये। अनीश फाइल करो। पैसा दो तब फाइल करूंगा। लॉ is service to the असली society. वकील है ये। Law profession is a service to the society, not only about profit making. गर्वित ये रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है? अब तेरा कोई क्लाइंट आएगा ना, यही रिकॉर्डिंग भेजूंगा मैं। बिल्कुल, मैं तो बेफिक्र कह रहा हूँ कि सही I बात। will I will ensure justice in the बिल्कुल to provide justice to the deprived करो। sections. You see, I'm a very money hungry guy, so I have to accept myself. मैं जो भी करूंगा पैसे के लिए करूंगा। घर वालों को भी तो खाना खिलाना है। हाँ, obviously, जस्टिस टू आवर सेल्फ। justice Yep. to ourselves. हाँ हाँ गर्वित भाई। No comments. Why no comments? You are a lawyer. No. I prefer to stay silent. अच्छा, मेन इशू पे तो आ जाते हैं, जो जिसकी वजह से पॉडकास्ट शुरू करा था। भाई अब you put it in a nutshell and What nutshell? I don't have no net. What? you मैं वही कह रहा था कि आपने तो इतना फिलोसफी वगैरह पढ़ रखी है, तो थोड़ा इफ यू कुड प्रिसाइजली समराइज द होल तो बस सेशन. यही बात है कि you should ascribe meaning to your life yourself, not by society or through someone else. And you don't have to justify every time to others. मतलब as long as what you are doing is moral, Hmm. beneficial to the society, your purpose is right, no matter what you do. And we human beings need a purpose to move in life. अगर पर्पस नहीं होगा तो हम में और जानवरों में फर्क नहीं होगा। हम उठेंगे, खाना खाएंगे, सो जाएंगे। बिल्कुल। बट ये भी नहीं सोचना चाहिए कि मतलब किसी हायर पावर ने हमें दिया है पर्पस कुछ करने का, बिकॉज वो तो दैट्स हाउ वॉर्स आर फॉट। शुरुआत में मैं पूछने था कि क्या कोई गॉडली प्लान है, क्या कोई आफ्टर लाइफ है, या आई फिर डोंट वांट टू बी एंटी रिलीजियस और एनीथिंग, बट भगवान के नाम पे लड़ाई नहीं होनी चाहिए, वरना ये भगवान का पर्पस क्या है? ये तो कोई भी रिलीजन नहीं कहता कि लड़ाई होनी चाहिए। लेकिन Which होती है भगवान के नाम पे ही है। वो लोग कर रहे हैं तो वो अलग मैटर है, बट रिलीजन नेवर स्प्रेड्स हेट्रेड according to me. It's a very controversial topic, religion. Yes, let's check it. Hey, why chuck it, bro? It's controversial. That's why we should talk about it. वरना कैसे खत्म होगा? Not in the sense, but nowadays it's really uncomfortable to even have a conversation regarding religion. I mean, Twitter में जाओगे, it's the last place anyone should have a decent conversation there, because half the time any half the time Twitter में लोग तो rage करते हैं. They don't have a decent conversation. सब गाली गलौज करते हैं, एक रिलीजन को गाली देते हैं, दूसरे रिलीजन को गाली देते हैं. It's just cycle, a vicious cycle of hatred. Words. भाई, the good thing about religion is it gives some moral order and structure to some people to how to behave. The bad thing about religion is it makes them feel entitled to do anything they want, including warfare and violent acts. So we should not take religion as black and white.
if it provides relief to some people, provides meaning to some people, it is very good. But I that does not mean that thought meaning should be taken in the wrong way. कि हाँ I हम think we should see everything in the way, because everything is not, even our morals, black and white. एग्जैक्टली इट इज नॉट. जो हमें बचपन में सिखाते थे राइट और रॉन्ग, सुपर हीरो, एक सुपर हीरो अच्छा है, विलन गंदा होता है, ऐसा नहीं होता. सुपर हीरो भी गंदे होते हैं, विलन भी अच्छे होते हैं. इट्स नॉट दैट सिंपल. Garvit, what is your conclusion? You conclude, man. You are the best. It is your first podcast, you should conclude. Actually, I'm feeling very nervous here. Say, you do it. ऐसी बढ़ेगी कॉन्फिडेंस. Hmm? कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. कंक्लूड philosophical argument. Why, as I said before, just live without appeal. What does that mean? Like, it doesn't matter that every actions will lead to a better future, or it has to your every action has to make any sense. Just leave all of these things and live life. Okay, very good. तो भाई करेंगे, करते रहेंगे. Thanks, bhai, for giving me this opportunity. अरे भाई तूने इनिशिएटिव लिया है, बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ. ओके अनीश भाई, थैंक यू. चलो भाई, काफी अच्छा रहा भाइयों से बात. चलो, see you. See you. See you too. Take care, all the best.